جی ہاں ہم ڈیبیٹ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور عبدالرحمن حامی لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور. سیدہ ام ابیہا ہیں ہمارے ساتھ حیدرآباد سے، یونیورسٹی آف سندھ سے. سیف اللہ سمون ہیں میرپور خاص سے. آج آؤٹ آف کراچی ہیں، لاہور، حیدرآباد اور میرپور خاص. دبائے اپنا دبے گی صدائے خلق خدا. رحمان فارس کا مصرع ہے. واہ. اور سب سے پہلے عبدالرحمن حامی ہیں. یار میں کیوں بیٹھ گیا یہاں پہ؟ صدر علی وقار آپ ہیں. آج آپ نے کوئی صدر علی وقار نہیں بولا. میں نہیں ہوں. خوبصورت شاعر کا مصرع ہے، خوبصورت آدمی ہی صدر علی وقار. لک ہوز ٹاکنگ. جی بسم اللہ. انسانوں کا تخلیقی اور پیداواری امکان مکتا ہے صدر علی وقار، مگر صدائے خلق خدا استحصال کر کہ لیاقت علی خان اور فاطمہ جناح پر غداری کا ٹھپا لگانے والے شاید وہ تو ان کو معاف کر دیں، لیکن تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. فیض احمد فیض کی آواز کو دبانے والے آج بھی اس وقت اپنا منہ چھپاتے ہیں جب خلق خدا اپنے حق کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہوئے فیض کی نظموں کے سر لگاتی ہے. ذی وقار مجیب اور ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی جنگ کو لسانی تعصب کا نام دینے والے آج تاریخ میں غدار، اور ذی وقار خلق خدا کی آواز بننے والے ذوالفقار اور مجیب آج انہی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں. صدر علی وقار مورخ یہ دیکھ کر حیران ہے کہ کھیل کے میدان سے جو کہانی شروع ہوئی زمان پارک میں بھی اپنے انجام کو نہیں پہنچ سکی کہ خدا نے حفاظت کے لیے خلق خدا کو بھیج دیا. ذی وقار زہر کے پیالے سے ہوتا ہوا انقلاب آج بھی ٹھاٹھے مار رہا ہے کہ سر فروشی کی تمنا آج ہمارے دل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. صدر علی وقار عباس کے زخمی بازوؤں سے ہوتا ہوا انقلاب آج ہماری رگوں میں لہو بن کر دوڑ رہا ہے. جیل خانے کی بوسیدہ دیواروں میں نیلسن منڈیلا قید ہے، مگر اس کی آوازیں پورے افریقہ میں گونجتی ہیں. شطرنج کے کھلاڑی کیوبا کے انقلابی بادشاہ چی گویرا کی صدا ہو یا پھر بھگت سنگھ کے کھنکھناتی زنجیروں کا شور، صدر علی وقار مرشد آباد کی گلیوں میں بھٹکتی سراج الدین دولہ کی انقلابی روح ہو یا پھر رانی لکشمی بائی کے جسم کی راکھ. ذی وقار یہ وہ لوگ تھے جو مرتے دم تک گنگناتے رہے کہ چراغ ہاتھ سے اپنے جلائے خلق خدا، پھر انقلاب کے سب گیت گائے خلق خدا. ہزار زخم لگاتار کھائے خلق خدا، دبائے اب نہ دبے گی صدائے خلق خدا. جی سیدہ ام ابیہا یونیورسٹی آف سندھ سے ہیں. جی بیٹا بسم اللہ. میری غذا، ملبوسات اور میرا پرچم مجھ سے چھین کر مجھے زندان مرگ میں پھینک دیا گیا اور مجھے کہا گیا تم چور ہو. میری آواز دبا دی اور مجھے کہا گیا تم قاتل ہو. مجھے بندرگاہ سے باہر نکال کر میری 4 سالہ بہن کو لے گئے اور کہا تم پناہ گیر ہو. لیکن میں فلسطینی لڑکی پیروئے جناب زینب چپ کی زنجیر توڑ کر کلام کرتی ہوں کہ پیدائش زمانہ سے قبل، ادوار کے شروع ہونے سے قبل، گھاس کے اگنے سے قبل میری جڑیں زمین میں پنجہ گاڑ ہو چکی تھی. میرا تعلق فلسطینی زمین پہ ہل چلانے والے خاندان سے ہے. میرا تعلق عظیم خاندان سے ہے. تم قاتل ہو، تم قابض ہو، تم ہم پہ مسلط کیے گئے ہو اور تم بنے ہو خیر سے فرما روائے خلق خدا. سنو یہ ملک خدا ہے، تمہارا تخت نہیں. علی وقار میری صدائے حق بلند ہوتی ہے. میں اسرائیلی فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہوں کہ تم نے میرے آبا و اجداد کو بے رحمی کے ساتھ بے گناہ قتل کر دیا، لیکن تم میری آواز نہیں دبا سکتے اور نہ تمہارے ضابطے میری آواز دبا سکے تھے، کیونکہ بھلے ہو خوف کے پہرے، بھلے ہو جبر کا راج، دبائے اب نہ دبے گی
सदाए खल्के खुदा, सदाए खल्के खुदा न दब सकी है और न दब सकेगी सदर आली वक़ार, कि सदाए खल्के खुदा न दब सकी बदर के मैदानों में, सदाए खल्के खुदा न दब सकी खंदक की गहराइयों में, सदाए खल्के खुदा न दब सकी ओहद की चट्टानों में, सदाए खल्के खुदा न दब सकी यूरोप की कलीसाओं में, और यही सदा दरबार शाम में फासिक व फाजिर यजीद के सामने जनाब ज़ैनब और इमाम सज्जाद का खुतबा बनकर अमर हुई और न दब सकी। सदाए खल्के खुदा न दब सकी सिंध की अदालतों में, सदाए खल्के खुदा कभी इमाम खुमैनी की सूरत, कभी जफर अब्बास की सूरत और कभी अरशद शरीफ की सूरत बनकर उभरी और न दब सकी। और कभी खल्के खुदा की सदाओं ने फितरी बलाओं और देवताओं से जंग की और डॉक्टर अजमल सावंत की सूरत बनकर उभरी और जाहिलाना रस्म व रिवाज के खिलाफ हमेशा के लिए बुलंद होकर ये बता गई कि अब हमें भी जुल्म के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करके दुनिया को ये बताना होगा कि जब हर सू बातिल फैलाने लगे शर, उठो के झुका दो किसी यजीद का सर, उठो के झुका दो किसी यजीद का सर। जी सैफुल्ला समून मीरपुर खास से। जी सैफुल्ला, बिस्मिल्लाह बेटा। मेरी निगाह मस्बत ये मंजर वहशियाना देख रही है सदर आली वक़ार कि ये ख़ित्ता फ़लस्तीन है, एक ऐसा ख़ित्ता जहाँ सूरज भी जुल्मत की क़बा में लिपटा तुलू हो रहा है, चांद की चांदनी भी जाते जाते अपने साथ बेकसों की उम्मीदें भी ले जा रही है, माँओं की ममता खून के आंसुओं में बहकर मर रही है, गोलियों की ताकत कलम की ताकत को मात दे गई, आज़ादी का ख्वाब देखते फ़लस्तीनियों की आंखों में कांच भर दिए गए और बादे नसीम 1400 साल कबल दश्ते करबला से होती हुई मस्जिद अक्सा जा पहुंची है, जहां मासूम मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, मगर हर मुसलमान ये कहता जा रहा है कि बुलंद तख्त ज़मी बोस होगा आखिर कार, कबूल होके रहेगी सदाए खल्के खुदा, भले हो खौफ के पहरे भले हो जबर का राज, दबाए अब न दबेगी सदाए खल्के खुदा। सदाए खल्के खुदा दर हकीकत हर हुसैनी की रगों में दौड़ते हुए लहू का नाम है सदर आली वक़ार। ज़रा अपनी इन हसीन नज़रों को इंसानियत के धागे में लपेट कर घुमाएं तो फ़लस्तीन से बर्मा, बर्मा से शाम, शाम से इराक, इराक से यमन, यमन से तुर्किस्तान और ऐसे बहुत से मुसलमान ममालिक में जहां हरदम सदाए खल्के खुदा बुलंद हो रही है, मुसलमानों पर यजीदी गुंडे जुल्म सितम की होली खेल रहे हैं। आप देखें, कहीं इमाम हुसैन जैसे बूढ़े जिंदान में अपने अहलो अयाल की फिक्र में, कहीं अली अकबर जैसे नौजवान शहीदों की शबी में, कहीं अली असगर जैसे नन्हे नाशों की मिसाल कायम हो रही है, तो कहीं बीबी ज़ैनब की सुन्नत अदा करती कमसिन बच्चियां यजीदियों की आंखों में आंखें डालकर ललकारते हुए मिल रही हैं कि सदर आली वक़ार ये सब सदाए खल्के खुदा की सदा बुलंद करते हुए करबलाए वक्त में यजीदी लश्कर के मुकाबिल खड़े वो लोग हैं कि जो पुकारते हैं कि हमको हर दौर की गर्दिश ने सलामी दी है, हम वो पत्थर हैं जो हर दौर में भारी निकले, ढल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। शुक्रिया। जी मैं दरख्वास्त करूंगा तीनों से कि तशरीफ ले आएं। अब्दुल रहमान, सैयदा उम्मे अबीहा और सैफुल्ला साहब, और फैसला इस वक्त चल रहा है। दोनों जज साहिबान सर झुकाए तड़ा तड़ बड़ा बड़ लिखे जा रहे हैं और नहीं जानते कि अब क्या होने वाला है। जी सर, क्या हालात हैं आज के, इस हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं तो? और आप लोगों का टाइम शुरू होता है अब। जी, सबसे पहले तो आज अच्छे मुकर्रिरीन फ़ातिहीन है, और आपने जिस मिसरे पर उन्वान बांध के आज तकरीर की, ये बड़ा शानदार कलाम है रहमान फ़ारिस का कि समझ तो सकते नहीं तुम नवाए खल्के खुदा, बने हो खैर से फरमा रवाए खल्के खुदा, तमाम खून खराबा खुदा के नाम पे है, अमान मांगते हो किस दर पे जाए खल्के खुदा, भले हो खौफ के पहरे भले हो जबर का राज, दबाए अब न दबेगी सदाए खल्के खुदा। और पहले मुकर्रिर ने आकर मफलूज
सही अदा नहीं किया, मुअर्रिख आपने सही अदा नहीं किया, लेकिन तकरीर के दरमियान में माइक आपका दुरुस्त करना मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कॉन्फिडेंस जो है वो शो करता है कि आप बहुत कंफर्टेबली खड़े हैं, जो हम अक्सर मैं और मुदस्सिर आपको बताते भी रहते हैं। फिर उसके बाद फिर आपका वाज़े नहीं है, फिर से फिर। और जो अच्छी बात है वो ये है कि आपने कंफर्टेबल दिखाया अपने आप को, लेकिन आपकी डिस्टॉर्शन आ रही थी माइक में, डिस्टेंस आपने नहीं रखा, शायद आपके गले की भी ख़राबी थी। दूसरी मुकर्ररा आपने कहा पनाहगीर, पनाह गुज़ीन होता तो ज़्यादा बेहतर था। उसके बाद आपने कहा कबल होता तो ठीक था। फिर आपने कहा खिलाफ होता तो ठीक था। फिर उसके बाद आपका भी डिस्टॉर्शन आ रहा था। ये आपने कभी सिंगर को देखा है, सिंगर गाना गा रहा होता है तो जब उसने ऊंचे वाले नोट पे जाना होता है तो वो अपने माइक को दूर कर लेता है। तो ये जो माइक डिस्टेंस है ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद तीसरे मुकर्रर ने आकर कहा मस्बत, मुझे बहुत अच्छा लगा, आमतौर पे मुस्बत कहा जाता है, आपने सही अदा किया। फिर आपने खित्ता फ़लस्तीन का हवाला दिया। फिर दौड़ते नहीं हैं, दौड़ते हैं, इसे भर के बोलना है। फिर यमन से तुर्किस्तान कोई मुल्क नहीं है, तुर्कमानिस्तान हो सकता है, तुर्की हो सकता है, तुर्किया हो सकता है। तो ये एक आपकी गलती थी। आपके पास भी मैंने देखा वो कंफर्टेबल लेवल था कि आप बड़ी आसानी से अपने पूरे रोस्टम के साथ जो है वो बहुत अच्छा डील कर रहे थे, माइक को भी आप अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे। फिर आपने कहा बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। फैसल भाई याद आ गया, एक बच्ची ने बड़े जज्बात में कह दिया बहरे जुल्मात में घोड़ा दिए दौड़े हमने। हो जाता है, हो जाता है। तो मैं वो देखते हुए मुझे मुस्कुराहट आ गई थी। जी। बहरहाल बहुत अच्छी तकरीर है। और बस आपको आखिर में एक जुमला कहकर फिर रिजल्ट की तरफ जाएंगे। बेटा, एक कहानी होती है फिल्म की, जो कहानी दो नस्लों पर मुहित होती है, उसको 3 घंटे में बयान किया जाता है। एक कहानी वो होती है जो एक फ़िल्म की होती है और वो 1 महीने की कहानी होती है, उसे 3 घंटे में बयान किया जाता है। और एक कहानी होती है एक फ़्लाइट की, तो 3 घंटे की फ़्लाइट थी, 3 घंटे में दिखा दिया। तो आपको ये आखिरी वाला तरीका अपनाना चाहिए। अब बहुत सारी चीज़ें एक जगह पे इकट्ठे करने से किसी के साथ भी इंसाफ नहीं हो पाएगा। अब नया फिल्म का जो दौर है वो इवेंट बेस पे होता है। तो एक 1.5 इवेंट घंटा हो गया बल्कि। उसको एक इवेंट पे रखा जाता है। तो अगर आप किसी एक मौजू को उठाएं तो उसके साथ इंसाफ करें। जी मुदस्सिर भाई। सर रिजल्ट्स बहुत हिलजुल वाले हैं, बहुत हिलजुल वाले हैं और अलग अलग हैं, इसलिए मैं सिर्फ आधा मिनट आपसे दिया आपको आधा मिनट, और खामोशी सी छाई हुई है। लेकिन ये और माइक ये- डिस्टॉर्शन ये- और रोस्टम के साथ जो आपका इस्तेमाल है ये वाकई काउंट होता है और अल्टीमेटली यही आपके लिए मार्क्स अच्छा खैर तलफ़्फ़ुज़ के बहुत से मामलात की बात कर ली है। जो आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आप एक वाक़े को, तो जब एक वाक़े के गिर्द पूरी तकरीर हो जाए तो वो भी ठीक नहीं होता जी। कि पूरी तकरीर एक ही वाक़े के ऊपर आपने वो करना, वो फिर वाक़या क्या कहते थे, मंजर निगारी साहब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वाक़या निगारी। वाकया निगारी। अच्छा, तो वो वहाँ तक आप महदूद हो जाते हैं। फिर कंटेंट मैं बार बार ये कहता हूँ वो बहुत काउंट करता है, तलफ़्फ़ुज़ आपका, लहजा, अदाई। आज रोज़ा है, आपको रोज़ा था, आपके लफ्ज़ गला खुश्क, वो हाँ खुश्क गले की वजह से निकल ही नहीं पा रहे थे, दूसरे रेड खे फे वो एंड के वो और चीज़ें। वही माइक का डिस्टॉर्शन भी बन जी जी वो आ भी रहा था और उसकी वजह से दोनों के पास आज बहरहाल गलतियाँ वो काउंट भी हुई हैं। लेकिन बहरहाल उसको मुख्तसर करते हैं क्योंकि मेरा ख्याल है फैसल भाई ने ब्रेक की तरफ हमें पहले इशारा किया है, वो मसरूफ़ हैं। जी 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 हज़रत। आप सदर अली वकार हैं आज, आप इधर सदर उधर अली नहीं हो वकार। सकते। मैं आज असल आपके में पास अभी मार्च हमें आगे एक और प्रोग्राम करना जी है, बिल्कुल, तो उस उसमें सिलसिले से मैं कोशिश कर रहा हूं। आज जो है वो स्प्लिट है जजमेंट, मेरे पास और आगा साहब के पास अलग अलग है, लेकिन जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक सिर्फ 1 नंबर का फ़र्क हुआ है, कैलकुलेशन के बाद 1 नंबर का फ़र्क हुआ है और उस फ़र्क के मुताबिक जो अगले राउंड सेकंड में पोजीशन बता दीजिए फिर पहले फर्स्ट। सेकंड पोजीशन बताएं। सेकंड पोजीशन जो है वो है अब्दुल रहमान हामी की, अब्दुल रहमान हामी की सेकंड है। जो पहले मुकर्रर थे। पहले मुकर्रर हैं। और अगले राउंड में जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो हैं सैयदा उम्मे अबीहा। सैयदा उम्मे अबीहा आगे जा रही हैं हमारे साथ। जी जी तो वो सेमीफाइनल में चली गई। वो सेमीफाइनल में चली गई। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक बेटा आपको, हार्ड लक। आज 2 जगह आप भी ट्रेन से उतरे, खुद आपको एहसास हुआ होगा दोनों को, चलती ट्रेन से उतर गए दोनों। आज तीनों ही उतरे हैं। हैं? नहीं उम्मे थोड़ा अबीहा फिर उतरे भी नहीं, उतरे। उसने बड़ा अच्छा पकड़ लिया था,
वो ऐसे करके बीच में वो होता ना, ये पाँव लगा के वापस आ गए, ये उतर गए थे फिर वापस आए। बट बहुत अच्छा मुकाबला था सीरियसली। मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ एक और शख्सियत को जिसके बारे में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप दोनों का। और तकरीर के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो जी पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है। जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।